Do you know what we are discussing today? Welcome everyone and class of calculus. Do you remember what we are going to discuss today? I told you in the last class that we shall talk about. I would appreciate your participation if you can speak up in this class. Sir, you said we were going to start integration. Integration, right? And you have some idea about integration from your college mathematics. What do you guys think about integration? So it's a anti-differentiation. It's an anti-differentiation or anti-derivative. So that is process. Yes. Yes, more opinions. Sir, it is used for calculating areas under the curve. Okay, interesting. So we use integration to compute area. So it can also be used to compute volume, Great. double integration. Great. Okay, so we have to. सर दो टाइप्स के इंटीग्रेशन होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट. Okay, so we have a types of integration also. So it is anti-derivative. Integration is something used to find area and same it is used to find volume. The fourth thing is there are types. There are two types of integration. Good one. So everybody believes that it is antiderivative in a process, in a way it is, how it is processed, and it is used to find area or volume of different things. And it is also true that there are two types of integration. But the way we rigorously, discussed derivative as a rate of change. So we started with functions and then rate of change, the change in dependent variable with respect to independent variable. Do you know some? Do you have any information to that depth about integration? I'm sure you know the process. So it looks like antiderivative process. So for example, a given function x square, the derivative of this function is 2 times x. So you bring the power as a coefficient and subtract 1 from the power. So this is process of derivative. And in antiderivative process, you increase one power and divide the same increased power with the. So as a number 1 point, so basically what we do, so x square and derivative is 2x, 2 minus 1, so it's 2x, and process antiderivative, so x square plus 1, this will come as a division. Here it was coming, we were bringing this as a coefficient in the multiplication of this x. So this is antiderivative, and we add some constant for the reason because when we apply derivative, it will be the same original function. So this is process, and how does it give us area or volume? So any know how about this second approach के integration हमें जो है वो area भी बताती है या volume भी बताता है.
And certainly there are two types. I'm sure you can explain के indefinite or definite integrals. But let's think about this area kind of thing. के ये area कैसे है? Yes. इंटीग्रेशन हमें एरिया कैसे बताती है? Why we represent integration, or why we call integration area under the curve? Come on, speak up. Any wild idea? आप कोई भी guess कर लें. सर इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, तो अगर डिफरेंशिएशन स्लोप देती है तो इंटीग्रेशन एरिया देता है. Differentiation slope देता है. We have I mean complete information about that कि वो slope कैसे देता है, because it is rate of change of the function at that point. तो वहाँ पर वो उसका जो function का जो graph है, curve है, उस पर उसकी जो tangent line है, rate of increase or decrease, इसीलिए उसको हमने मतलब tangent से हमने सीखा था. But in integration, so I think we need to know this thing. ठीक है, मैं I just wanted to create a realization के we simply call that integration gives us area of under the curve, or area between the curve, or volume in a two variable function, or double integration हमें volume मिलता है. तो ये चीज हमें realize करनी है कि वो मतलब area कैसे आती है integration के again. And I expect you कि you really realize or believe कि जो differentiation है वो slope tangent का कैसे होता है, because that gives us the change of the rate of change of the function. ठीक है, तो वो उस tangent की वहां पर slope ही आपको देखें, एक ऐसे function जा रहा है ना, ऐसे ऐसे curve है, तो ये उस पर tangents है different points पर. तो this is movement of tangent, basically differentiation होती है. सेम रिगोरस कॉन्सेप्ट हमें इंटीग्रेशन के लिए चाहिए, राइट? इंटीग्रेशन के लिए तो ये सारी तामीद इसीलिए थी कि we need to know in that sense, with that depth about integration. So think about this area. If you want to find the area of certain region or certain मतलब के पास कुछ given है तो उसको मेजर अगर करना है तो हम उसको इंटीग्रेशन में कैसे लाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ लेट्स से वेरी अनयूजुअल वे. हाउ डू वी मेजर एनी क्वांटिटी? कोई भी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए होगी? The most obvious thing we will need will be what? Unit. Well, because you have to represent unit, or मतलब यूनिट काइंड ऑफ मस्ट चाहिए होगा, क्योंकि आप जो भी किसी भी चीज को मेजर करेंगे क्वांटिटी को, तो आप उसको एज ए यूनिट बताएंगे. अब उसको मेजर कैसे कर रहे हैं, वो जो प्रोसीजर वगैरह है वो बाद में आता है. ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेजर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन क्लास, ठीक है, सो दिस विल बी अ नंबर. ठीक है, 1 2 3 इसका यूनिट होगा, मतलब नंबर, फुल यूनिट होगा उसका. एंड फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू measure the height of all students, accumulative height, ठीक है, तो हर सबकी हाइट जो है वो सम करके, एंड यू विल नीड अ यूनिट बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, फीट और मे बी मीटर्स. एंड प्रोटोकॉल फिर ये होगा कि आप इंडिविजुअली हाइट्स मतलब फिजिकली आप मेजर करेंगे एंड देन एड अप ऑल दोस हाइट्स, बट रिप्रेजेंट आपको यूनिट. तो यूनिट इज काइंड ऑफ ऑब्वियस थिंग which you need to represent your measurement. ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है that is procedure, and if I call it protocol then procedure or protocol, so it's the same thing. Or sometimes it is also called methodology, कि किस methodology से हम measure कर रहे हैं, and this depends upon कि हम measure क्या कर रहे होते हैं. अगर आप height measure कर रहे हैं तो आप मतलब you will need certain tools and all these things. Okay, so
या अगर नंबर सिर्फ मालूम कर रहे हैं तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 एंड या सो इसी तरह, मतलब ठीक है. So unit is important, and then there is a protocol and the methodology. So methodology will depend upon what we are going to, let's say, measure. जो चीज़ हम measure कर रहे हैं उसके हिसाब से वो different होगी. कहीं clever हो सकती है, मतलब कोई smart protocol या smart procedure हो सकता है, कहीं बिल्कुल simple सा हो सकता है. अब जैसे ये क्यूब है फॉर एग्जांपल, इसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ये कितना मतलब ये होगा आपके लिए, इसका प्रोसीजर क्या होगा, मेथोडोलॉजी इसकी क्या होगी. वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसको आपने फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे. ये चीजें आपको गिवन है. और सपोज ये 6L है होगा इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 6L होता है गैस क्यूब का. आपके पास फिर तीनों साइड्स गिवन है, फिर आप वॉल्यूम कैसे कंप्यूट करेंगे. सर 3 डायमेंशन है ना, तो हमें लेंथ मल्टीलेबल लेंथ. आपकी x y और z ये जो है आपकी, समझें कि x इज हाइट एंड y इज विड्थ एंड z आपकी इस तरह ब्रेड्थ है उसकी. ठीक है थर्ड. तो अब इस पैरामीटर्स के साथ इसका वॉल्यूम कितना होगा या क्या होगा वॉल्यूम. डू यू नो द फार्मूला. फार्मूला पता है आपको क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का. सर क्यूब का जी, क्यूब L का क्यूब. वॉल्यूम L क्यूब. एल क्यूब का. क्यूब. ओके, सो यहाँ पर हर साइड जो है वो एक्स वाई और जेड है. ठीक है, सो एक्स टाइम्स वाई टाइम्स जेड. नाउ इसमें मैथमेटिकली आपने दो चीजें की हैं. एक आपने किया है फार्मूला यूज किया है, ठीक है, और दूसरा आपके पास वैल्यूज गिवन थी. ठीक है ना, सही है. अगर ये वैल्यूज गिवन ना होती तो इससे पहले हम फिजिकली वो मेजर करते यूजिंग सम रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मीटर या फीट, एंड देन अगेन फार्मूला यूज करके उनको मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. Okay, so this is procedure of finding volume of the cube. Now suppose we have this shape. इस शेप का कोई सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. अब कैसे करेंगे. तो किसी भी चीज के वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सबसे पहला ये जो क्यूब है ना, नाउ दिस इज बेसिकली यूनिट. ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 1, y 1 एंड z 1 है तो v इज इक्वल टू 1, मतलब क्यूब इज अ यूनिट. ठीक है, ये चीज है. अब इस चीज का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है तो क्या होगा, वी विल यूज यूनिट क्यूब जिसकी हर साइड मतलब 1 1 1 है, उसको एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस या उसको रेफरेंस यूज करेंगे, एंड देन वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर फिजिकली. ठीक है, वो कैसे, उसका एक प्रोसीजर है इस तरह. फॉर एग्जांपल आप यूनिट, रिमेंबर दीज स्टेप्स केयरफुली. सो यूनिट क्यूब लें आप एक, ठीक है, and certainly it should be smaller than your अच्छा ठीक है, यूनिट क्यूब लिया, और फिर दूसरा आपने एक सिलेंड्रिकल ग्लास लेना है.
ठीक है, तो दो चीजें हो गई। नाउ फिल दैट गिलास टू अ सफिशिएंटली हाई मार्क। ठीक है, उसको आप पहले तो सबसे पहले तो आप सिलेंड्रिकल गिलास और क्यूब लेके, और क्यूब किसी चीज से फिल करके उस सिलेंड्रिकल ग्लास में पुअर करने 1 2 3 एंड 4, तो आप उस पर मार्क करते जाएंगे। now this is for example your cylindrical glass। आपने यहां तक मार्क किया 1 क्यूब, फिर आपने किया 2 क्यूब। आपने सपोज कर लें पानी जो आपके पास यूनिट क्यूब है, एक बॉक्स है यूनिट सिंगल का, वो आपने इसमें फिल करके मतलब लेवल्स नोट डाउन किए हैं फिजिकली ना, 3 क्यूब। इस तरह ये यहाँ तक आ जाएगा मे बी 10 क्यूब। ठीक है, अब जिस चीज का जिस मतलब सॉलिड का या चीज का आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, ये जो लिक्विड इस ट्यूब में है, सिलेंड्रिकल ग्लास में है, वो आप उस चीज में फिल कर दें। ठीक है, पहले आपने ये 10 तक फ्लूइड फिल किया हुआ था, अब उसमें फिल करेंगे तो आपको जो रिमेनिंग बच जाएगा या रह जाएगा, उससे वो डिफरेंस करके आप जो नई चीज थी या जो साइलेंट जो मतलब दूसरी चीज जिसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो फिजिकली इस तरह कर सकते हैं। ठीक है ना, सपोज करें आपके पास कोई मैथ नहीं है, यू आर अ केवमैन, तो उस सिचुएशन में ये एक मतलब चीज थी, और ये आज भी ऐसे की जाती है। मतलब मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस पर इस तरह एक खास किस्म की चीज होती है जिसको रेफरेंस बना के नाप के, और बाकी चीजें उसके हिसाब से वो तोलते हैं या मेजर करते हैं या नापते हैं या जो भी। ठीक है, सो मेजर इज ए जनरल वर्ड फॉर तोलना, नापना एंड तो ये प्रोसेस वही है। तो इसमें जो फ्लूइड निकलने के बाद या वाटर निकलने के बाद हम उस जिस चीज का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं उसमें पुअर करेंगे एंड फिर लोअर मार्क देखेंगे, और फिर जो पहले मार्क था उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, जो नई चीज जिसका वॉल्यूम फाइंड, बेसिकली हमें यूनिट चाहिए था पहले, जो क्यूब था सिंगल यूनिट 1 क्यूब, जो मालूम, तो उसको एज ए स्टैंडर्ड लिया है हमने। नाउ दिस प्रोसीजर वाज फिजिकल, राइट। अगर इसको हम मैथमेटिकली कैसे करें, ठीक है ना। अब मतलब और मैथमेटिकल करने का एक फायदा ये भी होता है कि वो जनरलाइज हो जाती है, हर बार उसको हम फिजिकल में नहीं करना पड़ता। अगर कोई भी शेप का आ जाता है, उसका हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे या एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सो this was, I mean, point. This was physical way, and we want to develop a mathematical procedure. ठीक है, so जो इसको रिप्लेस मतलब फिजिकल प्रोसीजर्स हमारे ना रहें और मैथमेटिकल प्रोसीजर्स हमारे पास हो। ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी ये प्रोटोकॉल या जो प्रोसीजर्स हैं वो फार्मूलाज के फॉर्म में हैं। ठीक है ना, कुछ फिगर्स के लिए हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास इस तरह की कोई फिगर है, दिस वन एंड दिस वन, दिस, इसकी लेंथ आपकी 1 है, इसकी 1 है एंड इसकी 3 है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 1 एंड 3, एक 3 होगा सर। 3 होगा, बिकॉज आपने क्या किया है, बेसिकली आपने फार्मूला यूज किया है ना, 1 टाइम्स 1 टाइम्स 3, सो दिस इज फार्मूला। जी सर। L times H times width, length, height and width। ठीक है, और अगर 2 डायमेंशन कोई ऑब्जेक्ट हो, ये उसकी लेंथ हो, ये उसकी हाइट हो, तो एरिया क्या होगा? L times H। ठीक है,
ऐसे होगा। जी सर। ओके, और अगर कोई सर्किल है इस तरह और उसका डायामीटर 4 है, तो इसका एरिया क्या होगा? पाई टू स्क्वायर। पाई 2 स्क्वायर, pi r square. सो आर स्क्वायर, आर इज 2, सो ये आपका होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर फिर आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, ये उसका बेस है या लेंथ कह लें, ये उसकी हाइट है, तो इसका एरिया क्या होता है? Half base into height. उसका हाफ हाफ। बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो आप बेसिकली रेक्टेंगुलर वाला, तो ये कुछ फिगर्स के लिए फार्मूलाज हैं। अब ये से एक फिगर हमें मिलती है, फॉर एग्जांपल जैसे ये फिगर थी, इसका वॉल्यूम हम नहीं कर सकते, तो इसी को अगर मैं 2D में लेके जाऊं, आई एम शॉर्ट ऑफ, ये कोई इस तरह बॉटल है ना फॉर एग्जांपल, तो इसका एरिया क्या होगा? आई एम नॉट श्योर इफ देयर इज अ वे टू फाइंड, आई मीन एरिया फिजिकली, या कोई फार्मूला आपके पास है? नहीं है ना? कोई है फार्मूला? नो। बट जो आपका जो फिजिकल प्रोटोकॉल था, जो प्रोसीजर था, आप उसको मैथमेटिकली अडॉप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास स्क्वायर, सॉरी नॉट दिस स्क्वायर, बट ये आपका रेक्टेंगल है, एल एंड एच डिफरेंट है उसके, ये आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, और एक से ज्यादा भी फिक्स कर सकते हैं, फिर उनका एरिया फाइंड करके आप सम कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको? सर लेकिन वो तो फिर एग्जैक्ट नहीं निकलेगा ना, क्योंकि शेप डिपेंड करता है ना उस पे तो। वेरी गुड। सो आप अगर इतने स्मॉल से जहां पर आपकी, मतलब ये देखें, ये कर्वेचर है ना, इसमें कर्व है, ठीक है, अगर यहाँ पर बहुत छोटे छोटे आप रेक्टेंगल्स प्लग इन करते हैं, इतने छोटे छोटे प्लग इन करते हैं कि आपका बिल्कुल उससे मैच करता है, और जैसे आपने वो लिमिटिंग सिचुएशन पढ़ी है कि यहाँ पर जो टेंजेंट है वो उसको अप्रोक्सीमेट करता है, लीनियर अप्रोक्सीमेट करता है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर जो टेंजेंट होगा वो इसको अप्रोक्सीमेट करेगा, तो ये तो काफी मतलब लार्ज हो गया है, बट इफ यू जूम इट, और यहाँ आपने बहुत स्मॉल स्मॉल इस तरह आपने रेक्टेंगल्स या इवन सिंपल स्क्वायर्स ही बनाए हैं, तो वो उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे। सो दिस इज, आई मीन दिस इज ग्लोबल मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेशन और फाइंडिंग एरिया और इवन वॉल्यूम। ठीक है, समझ आ रही है या कंफ्यूज्ड? यस सर। सर आ रही है समझ। अब तो ग्लोबली आइडिया यही है, हमें उस अप्रोक्सीमेशन को, नेचुरली अप्रोक्सीमेट आ रहा है, बस अप्रोक्सीमेशन को एग्जैक्ट की तरफ लेके आने के लिए वी जस्ट यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। आप, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एक रेक्टेंगल से अप्रोक्सीमेट करता हूँ, एक बड़ा एक रेक्टेंगल रखिए, तो मेरे पास बहुत सारी एरर आ जाएगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन बहुत कमजोर होगी, ये अमाउंट भी इधर में आ जाएगा, ये भी इधर में आ जाएगा, और इस तरह। और किसी ने इसमें 2 रेक्टेंगल्स रखे हैं, किसी ने 200 रखे हैं, तो उनकी एरर कम होगी, बट दे हैव टू वर्क मोर, राइट? 200 रेक्टेंगल्स, और किसी ने 2000 रखे हैं, किसी ने 2 बिलियंस रखे हैं रेक्टेंगल्स छोटे छोटे, तो वहां पर एरर का मार्जिन कम होगा। तो इस नोशन को अगर मैं फार्मुलेट करूं या फार्मली लेके जाऊं, तो दिस इज, आई मीन गोइंग टू बी, इफ आई यूज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, मींस अगर n जो है वो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है, एंड इफ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है, तो उसमें लिमिट लगा दूंगा मैं समेशन में, जो सबका सम होगा रेक्टेंगल्स। तो ये चीज है इंटीग्रेशन, जो आपको एरिया या इन 3, आई मीन डायमेंशन आपको देती है, वॉल्यूम देती है। ठीक है, सो इसको हमने मैथमेटिकली मतलब उसमें लेके आना है, उसका प्रोसीजर बनाना है, ठीक है, और ऐसा प्रोसीजर के वो नेचुरली ऐसा प्रोसीजर होगा कि वो अगर एग्जिस्टिंग फिगर्स के जो फार्मूला से आपको एरिया मिलता है, जैसे अब ये रेक्टेंगल है ना, तो इसका आपको
इस फार्मूले से मिलता है, अगर उस प्रोसीजर से भी फाइंड करेंगे तो आपको सेम आ जाए। तो वो प्रोसीजर तो बेसिकली इन्हीं फार्मूलाज पर काइंड ऑफ डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन मतलब अगर इसका हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो रेक्टेंगल ही यूज कर रहे हैं ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज अ रेफरेंस। तो अगर वो जो हमारा प्रोसीजर बन रहा है दैट इज सिंपली इंटीग्रेशन, और अगर इंटीग्रेशन हम इस रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए यूज करें तो इसका यही सेम आंसर आएगा, तो नॉट दिस वन, ठीक है। एल टाइम्स एच, इंटीग्रेशन से भी यही रिजल्ट आएगा और फार्मूला से भी यही। तो that new protocol or the procedure, it will work for the old मतलब figures, ठीक है, जहां पर old protocol अप्लाई हो रहा था और जहां पर नहीं हो रहा था इन फिगर्स के लिए उन पर भी, जहां पर फार्मूला आपका नहीं था। सो ओल्ड प्रोटोकॉल आपका फार्मूला है, ओल्ड प्रोसीजर आपका फार्मूला है, न्यू प्रोसीजर आपकी इंटीग्रेशन है। इन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी कि हाउ इट इज बीइंग डेवलप्ड, आहिस्ता आहिस्ता से वो कैसे मतलब हो रहा है, ठीक है। नाउ इस न्यू प्रोटोकॉल की ये दो प्रॉपर्टीज हैं कि वो इट विल वर्क फॉर सम फिगर्स दैट द ओल्ड मेथड डिड नॉट वर्क, ठीक है। जैसे इस फिगर के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हमारे फार्मूले हमारे पास नहीं है, ठीक है। प्रोसीजर फार्मूला ही है ना, एल टाइम्स एच, या इसका है एल टाइम्स एच बाई 2 पाई आर स्क्वायर, इस तरह फार्मूले, इसके लिए फार्मूला नहीं है। तो जो हमारा न्यू प्रोसीजर है इंटीग्रेशन है वो इसके लिए भी वर्क करेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज गिव द सेम आंसर एज द ओल्ड मेथड और द फिगर्स दैट ओल्ड मेथड could work or did work. So इसके लिए फार्मूला है, old method is फार्मूला, उसके फार्मूला यूज करके हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। So integration should give us the same this result, integration which is new, let's say procedure or new protocol. All right, so the second property is important। अगर वो हमारी जो important in a way कि it validates let's say our procedure, जो आप कोई भी नया मेथड यूज करते हैं ना, तो वो आप नया मेथड तो यूज करते हैं पुराने प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। नो सॉरी, आई मीन उन प्रॉब्लम्स के लिए जिनके लिए पुराने मेथड आप यूज नहीं कर सकते होते। सो लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं जिन पर पुराने मेथड यूज हो रहे होते हैं, तो नए मेथड की वैलिडेशन के लिए वो जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं वो भी हेल्पफुल होते हैं कि वो उनको वैलिडेट करते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? तो जो ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम है वो इतने मतलब यूजलेस नहीं होते, दे आर बीइंग यूज्ड टू वैलिडेट योर न्यू अप्रोचेस, न्यू मेथड्स, न्यू ट्रिक्स एंड न्यू प्रोसीजर्स। तो अगर आपका न्यू मेथड आपको पाई आर स्क्वायर सर्किल का एरिया जिसका रेडियस आर हो नहीं देता, इट मींस इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो आपका प्रोसीजर सही नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी नोन, ओल्ड मेथड से इसका एरिया सेटल्ड है, आपका न्यू मेथड यही एरिया उसको देना चाहिए, ठीक है। तो ये मेथड को आपको काइंड ऑफ एक्सटेंशन मतलब बनाता है, कोई आउट ऑफ फ्रॉम समवेयर कोई नया मेथड नहीं आता, लेकिन पुराने मेथड की लेट्स से एक्सटेंशन होती है कि वो पिछली चीजें आपकी सेम प्रिजर्व करे जो सॉल्व नहीं, बाकी नए पर भी अप्लाई हो। तो ये आइडिया दिया था इस मैथमेटिशियन ने, he was German mathematician and he died in Italy, ठीक है, रीमान बर्नार्ड रीमान। एंड इंटीग्रेशन को इसकी वजह से वी आल्सो कॉल्ड रीमानियन सम, ठीक है। ये आप लफ्ज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आप अभी सुनेंगे, एटलीस्ट Riemannian sum is the integration or origin of the integration, ठीक है। और is जो जहां से मतलब उसने जनरेट हुआ था, origin of integration, ठीक है। और उस प्रोसीजर को इसने जो प्रोसीजर दिया था, इट वर्क्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल फिगर्स, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी फिगर्स हैं जिनके लिए आपको इंटीग्रेशन एरिया नहीं देता। बाय द टाइम वी विल कन्फ्रंट, लेकिन जनरली
lot of figures we can find area, or for 3-dimensional figures using double integration we can find volume. So और उन सबको ऐसे डिफाइंड किया गया है, ठीक है, फिगर्स को। और वो फिगर्स आपकी या जो रीजन्स वो आपके क्या होते हैं, बेसिकली पॉइंट्स ही है ना, ठीक है, एक्स वाई। और नाउ वी सिंपली कॉल, वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है नाइस, वी जस्ट कॉल इट नाइस। तो ये इस लेक्चर के लिए ये, उसको हम बाद में भूल जाएंगे, जस्ट टाइम बीइंग इसको आप कर लेंगे, दिस इज नाइस। सो जिस चीज का हम एरिया फाइंड कर रहे हैं इट इज नाइस। नाउ जस्ट आई मीन मेक योरसेल्फ टू बिलीव दैट जो आपके पास ओल्ड फिगर्स हैं लाइक स्क्वायर, आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, सर्किल है, ट्रायंगल है, या इस तरह ट्रेपजॉइडल है, ठीक है, ट्रेपजॉइडल ऐसे होता है, ठीक है, एक साइड इसकी आपकी 90 के एंगल पे नहीं होती। तो ऑल ऑफ दीज आर सपोज नाइस, और इनके पास आपके पास फार्मूलाज हैं, इनके फार्मूलाज आपको अवेलेबल है, इसका भी फार्मूला है। बट हियर इज अनदर नाइस, अनदर ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट के एलिमेंट भी, ठीक है, वो कुछ इस तरह है, फ्रॉम ए टू बी, ये रेड लाइन है एंड enclosed by these 3 lines, black, blue and this red. अब इस चीज को which looks like a triangle but it is not exactly triangle, अगर इसको मैं triangle करूंगा, triangle मतलब अगर मैं उसको करूं तो ये हो जाएगा इस तरह कुछ, मतलब स्ट्रेट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ट्राइंगल से हटके। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड एरिया ऑफ दिस रीजन, इस रीजन का एरिया मैंने फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे इसका एरिया फाइंड मैथमेटिकली? आई मीन आप यह जो फिजिकल प्रोटोकॉल था उसको मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? तो जो रीमान ने बताया था वो कुछ इस तरह है, जो प्रोसीजर है, कपल ऑफ स्टेप्स हैं, बट यू कैन थिंक अबाउट ऑल दीज स्टेप एज अ वन स्टेप, एक पूरा प्रोसीजर आप उसको एक ही स्टेप आप काउंट कर सकते हैं। लिसन केयरफुली दीज स्टेप्स। सबसे पहले आपके पास जो x पर कंप्लीट इंटरवल गिवन है a, b, ये जो आपको a यहाँ पर ये a है और ये b है, ये जो गिवन है, इनको आपने n फर्दर सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है, ठीक है, n इक्वल पार्ट्स में, छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। इट मींस के आपके पास दिस इज पॉइंट b, दिस इज पॉइंट a। अब सपोज करें n आपका जो नंबर है, इफ इट इज 2, तो आपने 2 इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड करना है, दिस विल बी योर हाफ। अगर n आपका 4 है देन आपके 2 और हो जाएंगे, एंड एवरी पार्ट विल हैव लेंथ, उसकी कितनी होगी, ये यहाँ a है, यहाँ b है, b माइनस a डिवाइडेड बाय 4, ठीक, b माइनस a डिवाइडेड बाय 4। तो हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं n में, ठीक है, आपने n सब इंटरवल्स में n पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, एंड देन हर सब इंटरवल में चूज 1 पॉइंट, ठीक है, आप x, जैसे ये 4 थे तो यहाँ पर आपने ये x1, x2, x3 एंड x4, नाउ दिस इज b, दिस इज a, ठीक है, आपने चूज करनी है रेंडमली, इस इंटरवल में ये पॉइंट कहीं भी हो, कहीं पर भी हो, एंड देन फॉर ईच ऑफ द n सब इंटरवल्स, अज्यूम करें कि 4 हैं, कंप्यूट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब ये आप देखें यहाँ पर आपके पास जो रेड कर्व था ये कुछ इस तरह, ठीक है, यूं कुछ इस तरह कर्व था ना, ठीक है, जब आपने इनको डिवाइड किया तो ये आपने यूं
लाइन खींच दी है यहाँ पे, ठीक है, इनको मतलब नाइसली डिवाइड कर दिया। अब आपके पास देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 और ये आपके पास ट्रेपजॉइडल बनते हैं, ठीक है, नो सॉरी नॉट ट्रेपजॉइडल, ओके माय बैड, आप मतलब सिंपली उसको रेक्टेंगल्स बनाए। आई नीड अ ब्लू पेन में भी। सो इस जो इसका अब जहाँ पर दो है ना, एक ये इसकी जो है वो साइज जो जो साइड है विच इज द लोअर वन, और दूसरी जो साइड है दैट इज द हायर वन जो लार्जेस्ट है। तो हमें पहले इस लोअर को लेके हम इसके सारे बना लेते हैं ट्रायंगल्स। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम सर। शर्मा क्लास ठीक है, ओके। सो this is these are now rectangles, 4 rectangle, but we have another approach, and that is I have to use another color, maybe this one, yes, okay। So एक अप्रोच ये भी है कि इस फर्स्ट के लिए मैंने ये लोअर क्यों यूज किया है, ये हायर क्यों ना यूज करूं, ठीक है ना, ऐसे। अब ये दोनों अप्रोक्सीमेट नहीं, दोनों अप्रोक्सीमेट, इनमें से एक्यूरेट कोई भी नहीं है, बट इट गिव्स सम प्रोसीजर एट लीस्ट कि आपने सब इंटरवल्स बनाए हैं और हर सब इंटरवल पर आपके पास रेक्टेंगल है, उसका एरिया फाइंड करना इजी है बिकॉज इनकी जो बेस है या जो ये लेंथ है, ये उसका ये है आपकी लेंथ b माइनस ए टाइम्स 4 या जनरली n, और इसकी हाइट आपकी यहाँ पर भी वैल्यू गिवन है और यहाँ पर भी वैल्यू गिवन है। अगर आप मिनिमम ये ब्लू लाइन ले रहे हैं तो मिनिमम चूज करेंगे, अगर मैक्सिमम वाला चूज कर रहे हैं तो ये वाला लाइट ब्लू पॉइंट लाइन चूज करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपकी फंक्शन में गिवन है, ये जो आपका फंक्शन है ना, किसी न किसी तरह फंक्शन गिवन होगा, ठीक है। तो इन सब का एरिया कंप्यूट करके, फॉर एग्जांपल ये 4 हैं और इसको जनरलाइज सोच लें कि n है आपके पास, इनको ऐड करें तो आपको एरिया अंडर दिस कर्व मिल जाता है बिटवीन दिस इंटरवल, ओके। तो ये सेकंड स्टेप भी मैंने इस तरह एक्सप्लेन किया, बी और सी भी रेक्टेंगल उस बेस है, सब इंटरवल हाइट ऑफ द फंक्शन एक्स उसमें से चूज है, एंड सर आपसे सॉरी सर एक क्वेश्चन था। श्योर, गो अहेड। सर वो जो अभी आपने ग्राफ समझाया था जैसे ना, तो उसमें हम सिर्फ नीचे वाले ऊपर वाली वैल्यूज भी ले सकते हैं, जो लाइट ब्लू से हम आपने वो करे थे एरिया, तो जी उसमें से हाँ भी ले बिल्कुल, सकते हैं? जी आप यू हैव देखिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है ना। आप मिनिमम वैल्यू लेते हैं, इसका मतलब है x1 जो है वो मैंने लेफ्ट हैंड पॉइंट चूज किए, ठीक है। ये जो यहाँ पर स्टेप बी है, इन ईच n सब इंटरवल्स, मतलब इन ईच ऑफ दीज 4 इंटरवल्स चूज वन पॉइंट इसेंशियली एट रैंडम। आप रैंडम आपको कहा गया है, बट रैंडम चूंकि कहा गया है तो आई चूज लेफ्ट फॉर एवरी सब इंटरवल। तो ये आपकी लेफ्ट पॉइंट है जो डार्क ब्लू के साथ बना रही है रेक्टेंगल्स, और अगर मैं एक्सट्रीम राइट वाली पॉइंट चूज करता हूँ हर सब इंटरवल में, चारों सब इंटरवल्स में, देन आपको ये लाइट ब्लू के साथ रेक्टेंगल्स बनते हैं, ठीक है। और अगर कोई और रैंडम पॉइंट आप बनाए चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ इन बिटवीन चूज की है, ठीक है, यहाँ पर चूज की है, तो ये यहाँ तक फिर आएगा। इसका भी आगे एग्जांपल आ रहा है ना फिगर, ये तो मैंने हाथ से बनाई है, बट देयर आर प्लॉटेड फिगर्स इन द प्रेजेंटेशन। सो तो अभी कॉन्सेप्ट ये कि I couldn't hear you. हाँ सर, थैंक यू। Okay, now I could hear you. So कॉन्सेप्ट ये है कि 4 सब इंटरवल्स क्यों, 40 क्यों नहीं? अच्छा कोई और आता है 40 क्यों, 400 क्यों नहीं? So this notion needs to be extended for infinite sub intervals. So last step that is important, take a limit as n approaches to positive infinity. आपने पॉजिटिव इंफिनिटी में तो इनफाइनाइट आपने लेने हैं सब इंटरवल्स, एंड दिस इज नो सिचुएशन। हाउ कैन यू टेक
इनफाइनाइट सब इंटरवल्स। सो ये आपने जस्ट आई मीन एक लिमिट अप्लाई करके ही करना होगा। सो दिस प्रोसीजर विल इन्वॉल्व अ लिमिट प्रॉब्लम, रिमेंबर, ठीक है। सो इसमें और कोई भी ट्रबल नहीं है, सिर्फ मे बी ये सम करना थोड़ा सा मुश्किल हो, बट दिस इज ट्रबल, ये ई वाला जो पार्ट है। और इसमें जो पार्ट बी है, चूज वन पॉइंट। नाउ दिस इज, आपका क्वेश्चन भी इसी में था ना कि नाउ दिस बी इज अ ड्रीम, इसको मतलब व्हाट पॉइंट आई शुड चूज। किसी ने एक्स लेफ्ट ड्रीम लेफ्ट पॉइंट्स चूज किए हैं, किसी ने राइट किए हैं, किसी ने इन बिटवीन किए हैं, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट वैल्यूज देता है। तो लुक, अभी n is equal to 8, I couldn't do it with hand, but using graphical tools, तो ये सेम आपका जो गिवन प्रॉब्लम था, n 8 चूज किया है एंड यू यूज्ड द लोएस्ट रेक्टेंगल्स। इट मींस जो आपने हर इंटरवल में जो पॉइंट यूज किए वो लेफ्ट एंड वाली पॉइंट यूज की है, ठीक है, लेफ्ट हैंड वाली पॉइंट। तो आपके इस तरह बनते हैं जो 8 रेक्टेंगल्स हैं। नाउ सम ऑफ areas of all these 8 rectangles will be the area under curve approximately, okay। and next, अगर आप हाईएस्ट वाले यूज करते हैं तो मतलब राइट हैंड साइड वाले, यहाँ से यहाँ बना दिया, यहाँ से मतलब यहाँ से, तो ये दूसरी सिचुएशन थी। एक और कॉन्सेप्ट है कि आपने हर सब इंटरवल में जो एक्स पॉइंट चूज किया था दैट शुड बी इन बिटवीन, मतलब इसका और इसका एवरेज होना चाहिए, ठीक है, समझ आ रही है। मतलब यहाँ पर ये हाईएस्ट वाला राइट हैंड, यहाँ पर लेफ्ट, उससे पहले लेफ्ट, और ये इन बिटवीन। तो बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन आ रही होती हैं तीनों, मतलब बट मेन कॉन्सेप्ट इज के, और इन तीनों में नेचुरली दिस इज द बेटर वन बिकॉज इट somehow compensate the excessive error and this positive error and this negative error, ठीक है। और सब में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स लेने हैं, so n should approach to infinity, positive infinity indeed, ठीक है। now when n approaches to infinity, from 8 I could do it 80, ठीक है। आप ग्राफिकली 80 कर सकते थे, कर सकते हैं, आई मीन इवन 800 भी कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट शो यू द डिफरेंस। वो आपकी सिर्फ इस तरह मतलब बिल्कुल लाइनिंग ही हो जाएगी, फिर आपको उसको जूम करना है। तो 22 फॉर एग्जांपल, ठीक है, वी हैव 22, तो आपके पास ये चीज आ जाती है। और यहाँ आप देखेंगे एरर आपके पास बहुत थोड़ी है। इट नाउ दिस discrete behavior tends to be continuous when n increases or n approaches to infinity. Is it clear? Yes, Do you sir. get what I am trying to say? Will you buy Yes, sir. it? Okay, so ये procedure है, and now let's I mean formally bring into the mathematical expressions, notations, symbols, and उसकी scheme हम बना लेते हैं, ठीक है। This is integration. Do we have any question? Can I call everybody and can I listen him and her? Adnan? Adnan? Yes, sir. Ali Muhammad? Sir, yes, sir, present. Armin? Present, sir. Arup Abbasi? Arup? Arup, absent. Arup Abbasi. And Duresh Awar? Present, sir. Hamad Saeed? Hamad? Yes, sir. Mir Waliullah? मीर वलीउल्लाह, आप थोड़ी देर पहले तो इधर ही थे। मोहब्बत अब्दुल्ला जाहिद,
Yes, sir. Muhammad Ahmad, you just asked the question, right? Yes, sir. Anas, Present, sir. Faizan Abid, Present, sir. Present, Mustafa sir. Anwar, Mujtaba, Present, sir. Nawazish, Present, sir. Quratul Ain, Present, sir. Salman, Sufyan, Present, sir. and Zain Jisani, Zain Arif. Right? Present, sir. Okay. Sir, Salman present. Salman, where is Salman? Salman, Sir, present. सलमान की जगह पे कौन बोल रहा है? Okay, so we have one guy in the class who is sleeping. ऐसा ही है? Arup Abbasi is sleeping. Okay. Sir, Salman present. Okay, all right, I got you, man. And thank you for tolerating me and tolerating calculus. So let's continue with our struggle with integration. तो ये हमारा मतलब बैकग्राउंड था. इसी तरह हमने एरियाज फाइंड करने हैं या वॉल्यूम, तो इनको हम अभी मैथमेटिकली फार्मूलेट करते हैं प्रॉपर्ली. ठीक है, तो वी नीड सम नोटेशंस. हमने उनको रिकॉल करना है टू अंडरस्टैंड द रिमेनियन प्रोसीजर, रिमेनियन सम ऑफ इंटीग्रेशन, एंड फिर उसको एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द n इंटरवल्स. ठीक है, हमने उनको नेम करना है. सो यूजुअली हर इंटरवल को हम ऐसे रीनेम करते हैं, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा xn. एंड ये जनरलाइज नोटेशन मतलब हमें फ्लेक्सिबल छोड़ती है कि हम हर इंटरवल की लेंथ डिफरेंट भी रख सकते हैं. ठीक है, delta x1 doesn't need to be equal to delta x2, तो ये हर इंटरवल की लेंथ है. and so delta x generally length of the interval. और जो पॉइंट हम एक सब इंटरवल में छोटे हिस्से में पिक कर रहे हैं, so we have to choose point in every interval. अगर n इंटरवल है तो n पॉइंट्स होंगे, तो हम इनको नाम देते हैं x1, x2, x3. I already did that, so just recall this. And now the area of each that triangle in sub interval, जो आपके छोटे छोटे इंटरवल्स थे उनमें जो रेक्टेंगल बन रहा था, उनका एरिया, उनके एरिया का फार्मूला क्या था? If I go back to this one, तो यहाँ पर एरिया क्या होगा? मुझे पेन चाहिए, दिस वन. ओके, ठीक है. तो अगर x1, इसमें आपने जो पॉइंट यूज किया है, अगर x1 यूज किया है, ठीक है, तो एरिया क्या होगा आपका? b माइनस a टाइम्स 4. ये आपकी बेस का जो है ना लेंथ है. ठीक है, लेंथ ऑफ द इंटरवल टाइम्स, अब ये तो हो गया इसका ये चीज. अब इस चीज को आपके पास दो ऑप्शन थे. एक आपने ये पॉइंट चूज किया है, ये दूसरा ये पॉइंट, मतलब लोअर पॉइंट एंड हायर पॉइंट. जब बिलू से आप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है where is this below, man? Below pen. ओके, सो बिलू के साथ आपका है, तो यहाँ पर फंक्शन की
स्मॉलेस्ट वैल्यू मीन्स के एफ ऑफ ए, ठीक है। और अगर लाइट ब्लू आप यूज कर रहे हैं दिस वन, देन आपको यूज करना होगा टाइम्स एफ ऑफ बी, सॉरी नॉट बी बट एफ ऑफ ये जो दिस पॉइंट है आपका, ये सपोज करें x1 है, लेट मी राइट इट अगेन, दिस पॉइंट। और अगर एवरेज लिया है और कहीं इन बिटवीन है, ये पॉइंट है x1, तो आपका वो होगा। तो इन शॉर्ट लेट्स कम टू दिस नोटेशन फॉर्म। तो डेल्टा x टाइम्स एफ ऑफ x1, नाउ ये यहाँ आपका कामा है, इफ यू नोट दिस, ये एक चीज है, ये आपकी दूसरा एरिया है, इसी तरह ये n टाइम्स एरिया है। डेल्टा x जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है this delta x is basically b minus a divided by n, length of every subinterval. Do you have any question? यस सर। सर Please. बताया ना, जैसे फंक्शन ऑफ x1 होगा, अगर हम अपर वैल्यू से लेंगे, राइट हैंड साइड से लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से f फंक्शन ऑफ a क्यों होगा सर? वो फंक्शन सिर्फ a तो ओके गुड वन। सो वो सिर्फ इस पर्टिकुलर फर्स्ट इंटरवल के लिए था, ठीक है, मतलब जी फर्स्ट सर। सब इंटरवल के लिए था कि यहाँ पर a गिवन था ना, a टू b, जो ग्लोबल इंटरवल बड़ा इंटरवल गिवन था a टू b था। तो पहले इंटरवल में लेफ्ट वाला a होगा, दूसरे इंटरवल में लेफ्ट वाला ये पॉइंट होगी, ओके सर। और थर्ड में लेफ्ट वाला ये पॉइंट होगा, और इवन लास्ट में लेफ्ट वाला ये पॉइंट होगा। ये b विल नॉट बी यूज्ड। और अगर जब राइट लेंगे तो इसी पहले सब इंटरवल में a यूज नहीं होगा, राइट वाला ये पॉइंट यूज होगा। इट्स अ मैटर ऑफ आप उस वक्त कौन से पॉइंट यूज कर रहे हैं, लेफ्ट यूज कर रहे हैं लाइक लोअर रेक्टेंगल्स बना रहे हैं, या फिर ये राइट वाले यूज कर रहे हैं टू मेक हाईएस्ट रेक्टेंगल, या एवरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों, तो बेसिकली एवरेज को भी आप छोड़ दें। जब आप इस नोशन को लेके चलते हैं ना, इस n इज इक्वल टू इन्फिनिटी को, तो फिर तीनों का कोई भी इशू नहीं है, आप रैंडम पॉइंट ले लें। ओके सर। ठीक है, अब इसको इस रैंडम नोटेशन में यहाँ दोबारा करता हूँ आपके लिए। ये आपका A, ये आपका B, आपको ये एरिया चाहिए, ठीक है, ये वाला एरिया आपको चाहिए। हाँ, आपने इसको दो में डिस्ट्रीब्यूट किया अभी सिर्फ, और आपके ये दो इंटरवल आ गए। सो n इज इक्वल टू 2, x1 आपने चूज करनी है, x2 आपने चूज करनी है। तो सपोज कर लेंगे दिस इज x1, ये आपने विड भी नहीं है, ये बस कहीं पर है, और ये आपका x2 है। तो अब इस पॉइंट के हिसाब से ये जो यहाँ पर पॉइंट होगा, आप इसमें से स्ट्रेट लाइन लेके, ये आपका क्या होगा, रेक्टेंगल, और फिर इस पॉइंट को ऊपर करके यहाँ जहाँ डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से भी स्ट्रेट, यहाँ से भी स्ट्रेट, ठीक है। तो ये रैंडम पॉइंट्स वाली कहानी ये है। तो जब हम ये कर रहे हैं ना चीज n गोज टू इन्फिनिटी, तो आप रैंडम पॉइंट्स लें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इन दी एंड यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स टू इनफाइनाइट। तो आपका वो मैटर नहीं करता है कि आपने रेक्टेंगल लोअर से बनाए या हायर से बनाए या मिड से बनाए या रैंडम से बनाए। तो रैंडम से हम जस्ट उसको करेंगे, ठीक है। सर सो हर उस रेक्टेंगल का एरिया आपका ये है डेल्टा x, ये आपका लेंथ ऑफ द एवरी सब इंटरवल टाइम्स f ऑफ x1, वो x1 रैंडम वैल्यू, उसके साथ जो आपकी स्ट्रेट लाइन ऊपर, x2 इस तरह xn। तो ये सब आपके n एरियाज हैं, n रेक्टेंगल्स के, सब रेक्टेंगल्स के, छोटे रेक्टेंगल्स के, ठीक है। नाउ इन सब को सम करना है, तो ये हमने एक दो इसी तरह इनको हमने ये आपने सम किया है यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू, इनमें ये चीज कॉमन रह जाती है, और बाकी आपके ये फंक्शंस के सम हो जाएंगे। तो ये कांस्टेंट आप इसको मान लें, ठीक है। और
एक, this is called summation notation. Summation notation. ऑलराइट, ये आप इससे लिखते हैं ना, और ये आपकी समेशन नोटेशन की इंडेक्स होती है। इट मींस के अंदर जो टर्म्स हैं जहां पर ये इंडेक्स यूज हो रही है उसको आप इतनी मरतबा एक्सटेंड करके और सम करते हैं। तो ये कांस्टेंट है, ये हम बाहर भी रख सकते हैं और आप ये समेशन में, दिस थिंग इज कॉल्ड दिस रीमानियन सम। सही है। अब आप, अभी तो आपने सिर्फ n लिए हैं ना, तो n जनरल है, आप 2 3 4 5 मतलब कितना n जितना इंक्रीज करेंगे उतनी एक्यूरेसी, एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मींस यू विल हैव टू पुट लिमिट n approaches to this function delta x summation I is equal to 1 to n f of xi। ठीक है, तो ये एक मतलब जब तक लिमिट नहीं आती तब तक ये अप्रोक्सीमेट रहेगा, और इनको सम करना भी इट्स नॉट दैट इजी। इसका हमें अल्टरनेटिव फॉर्म चाहिए। नो, ये तो फिजिकल आइडिया से मतलब ने भी मतलब रफली हमने ट्रांसफॉर्म किया है रीमानियन सम्स में। तो इसको हम कैसे लिख कैसे सकते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा बेहतर तरीके से ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। लेकिन पहले इस प्रोसीजर को आप थोड़ा सा पहले वेरीफाई भी कर लें कि वेदर इट गिव्स यू द एक्यूरेट वैल्यू, या वैलिडेट कर लें जो आपके पास पहले ऑलरेडी मौजूद चीजें हैं, ठीक है, उन पर आप वैलिडेट कर लें। जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और दूसरा आप ट्राइंगल का एग्जांपल ले लें। तो पहले रेक्टेंगल ए और बी, ये आपके रेक्टेंगल बनते हैं। इसका एरिया आपको पता है, इफ दिस इज एफ ऑफ x इज इक्वल टू के सम फिक्स नंबर, और इनमें से कोई भी रैंडम पॉइंट a और b के इन बिटवीन आप अगर चूज करेंगे, लेट से दिस इज x, और अगर दूसरी आपने यहाँ x2, तो f ऑफ x1 आपका क्या होगा, f ऑफ x2 क्या होगा, ये किसके इक्वल होंगे, f ऑफ x1, अगर x1 कोई भी पॉइंट है इन बिटवीन a एंड b, f ऑफ x1 किसके इक्वल होगा। हेलो गाइस, सर आप केक है। सर के कौन बोला, मैं बोला। नाम, सर अली। और दूसरा कौन बोला था, सर मैं बोला था। अदनान। तो एफ ऑफ x1 बेसिकली क्या ही होगा, थैंक यू गाइस बोथ। और अगर कोई और पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी चूज करते हैं तो वो भी क्या होगा, और अगर कोई और तीसरा पॉइंट इसको 2 और इसको 3 कह लें तो उस पर भी वैल्यू क्या ही आएगी आपकी, ठीक है। तो सबकी वैल्यू ये क्या आएगी, और आप इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब ठीक, ये आपका वेरिफिकेशन है। ओके, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ QED, इसको आप थोड़ा सा गूगल कीजिएगा, ठीक है, QED का क्या मतलब है। ओके, नाउ ट्राइंगल के लिए एंड नाउ फॉर ट्राइंगल, ये देखें रेड लाइन, ये आपको ट्राइंगल बता रहा है, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू आपकी मैक्सिमम के है 1/2 ए के रेक्टेंगल है, और इन बिटवीन आप वैल्यूज लेते हैं तो या आपको शो हो जाएगा कि कितना आ रहा है। ओके, अगेन दिस सेम एग्जांपल, दिस टाइम फिगर
इसके लिए आपको पुराना प्रोसीजर जो फार्मूलाज हैं कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई वहां से जवाब नहीं आता, बट द रिमेनन प्रोसीजर या प्रोटोकॉल है वो आपको जवाब देता है, एंड दिस इज दिस। एंड इफ यू रियली वांट टू वेरीफाई तो ये यहाँ पर ये जो फंक्शन है दिस इज एक्स स्क्वायर एंड लार्जेस्ट वन इज लाइक के, सो सॉरी के एक्स स्क्वायर, फंक्शन आपका के एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन ओके ये उस पर मतलब वेरीफाई है इस एग्जांपल पर के एक्स स्क्वायर पर, ठीक है ना, फंक्शन पर ये उसकी वेरिफिकेशन है। नाउ मैंने आपको मतलब पहले बता दिया था कि उसको इनफाइनाइट में लेके जाएंगे तो मतलब दैट इज विल बी इंटीग्रेशन। सो नेक्स्ट सेक्शन की स्लाइड्स में आपकी मतलब वही इंटीग्रेशन वाला है। सो फॉर दैट वी आर टेकिंग जस्ट आई मीन पॉप अप विद द नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। वी विल टेक 10 मिनट्स ब्रेक, तो हम 2 बजे वापस आएंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई कैन आंसर इवन ड्यूरिंग दिस ब्रेक सेशन। Questions are really appreciated, more than welcome. I mean. No questions? Okay, then see you at 2 after 10 minutes break.
Excuse me, sir. I have a question. Sir, I can't hear you. Go ahead. सर वो ये जो फाइनल्स होंगे हमारे ये ऑनलाइन होंगे? Looking at the situation, I think final online ही होंगे. सही है सर. Sir, I have a question too. Sure, please. सर जैसे आप बताए थे कि ऑनलाइन एग्जाम अगर होंगे तो क्या कहते हैं इसका क्राइटेरिया क्या होगा फिर, जैसे कि क्या हमें एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि हमें इस टाइम के दौरान में हमें एग्जाम कंप्लीट करना है या क्या करना है? Most probably यही होगा within 2 or 3 hours, क्योंकि 24 hour experience was not that good and even 3 hours experience was not good. So अभी इसमें decide नहीं हुआ, लेकिन most probably time bound ही होगा. अगर सिचुएशन बेटर होती है तो फिजिकल एग्जाम के लिए थोड़ा सा डिले भी हो सकता है टिल जनवरी. सही सर. तो सर एग्जाम सर वैसे एग्जाम वीक किस वीक से होगा? 21 दिसंबर के बाद से इट्स अकॉर्डिंगली नॉट या? येट डिसाइडेड. ओके अभी सर. डिसाइड नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ. सही सर, ठीक, थैंक यू. सर डिले एज इन जैसे अगर 11 जनवरी को नहीं खुली तो फिर तो वो हो जाएगा ना कि और डिले हो जाएगी, फिर सेकंड सेमेस्टर भी हमारा स्टार्ट होना है. Everything is under consideration. There are a lot of possibilities. Nothing is yet decided. So all options will be, discussed thoroughly. Maybe next week तक meeting हो जाए, एक week. ओके सर, थैंक यू.
Okay, we are back. 5 minutes late. So, present a window, this presentation. Can you see screen? Yes, sir. Okay, cool. And do we have Arup in the class? Arup. Arup Abbasi. Okay. Well, we discussed, history of, let's say, how the integration developed. Just in hunt of if we have to find compute area under some curve or area of some, let's say, uncertain shape or shape with some complex geometry. So उसका area find करने के लिए उसको rectangles में divide किया, उनको sum किया. That is called Riemannian sum, and yeah, that is basically equal to the integration. So how we just formally equate that, and we see in this slide. So let me allow me to read this. So most important thing to understand from the Riemannian integration is that Riemannian procedure as integration is a new way to assign areas to figures in the plane xy plane. Plane means xy plane, right? That gives the same answer as the old method, means formulas could give or gave for the figures solvable for the old method. ठीक है, जैसे रेक्टेंगल था, ट्रायंगल था, उसको ओल्ड मेथड से फार्मूलाज से हम एरिया फाइंड कर सकते थे. नया हमारा जो रिमेनिंग इंटीग्रेशन या सम है वो भी उनके लिए सेम देता है, बट also gives answer to the figures not amenable, not solvable to the old method या जिनके लिए formulas available नहीं थे. Now a couple of questions come in the mind, and those questions are question A is, we need a name for all those figures. दो वो figures चूंकि मतलब हमने उनको approximate तो किया था कि rectangles था, but formally, so for which Riemann हम उन सारी figures को मतलब जैसे okay, so मतलब एक ये एग्जाम्पल था इस फंक्शन का. ठीक है, इस तरह एक और एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ये है. तो इन सब यहाँ पर इसका एरिया फाइंड करना है, ये इसका एरिया फाइंड करना है. तो इन सब को हमने एक नाम देना है, जैसे रेक्टेंगल, सर्किल, ट्रायंगल. सो जिनके लिए रीमान प्रोसीजर हमें मतलब एरिया बता सकते हैं, तो वो हैं. तो बेसिकली मतलब ये ऊपर इनके जो है ना, नीचे तो दिस इज एक्स एक्सिस, आपने प्लेन में उनको देखना है, और ये भी आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं ए और बी. तो बाकी सिर्फ ऊपर वाली चीज रह जाती है, एंड दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय और कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इवन. तो एक फंक्शन से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स से. तो हम इसीलिए उनको फंक्शंस कहते हैं. और ये जो यहाँ पर है ना, ये सारी पॉइंट्स फंक्शन की पॉइंट्स जैसे आप प्लॉट करते हैं, इनको आप इस तरह लिख सकते हैं, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू दिस टू एक्स वाई प्लेन. ये जो सारी यहाँ पर पॉइंट्स हैं, all these points are, ठीक है, ये आपके जो पॉइंट्स हैं और ये वाले आपके पॉइंट्स हैं. ठीक है, और वो पॉइंट्स ए से एक्स उनमें जो है कोऑर्डिनेट वो ए से स्मॉल है, और वाई जो है वो 0 और एफ ऑफ एक्स से स्मॉल है. मतलब ये जो आपका वाई की जो वैल्यूज हैं, ये मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स हो सकती है और कम से कम 0 हो सकती है. इसका मतलब है कि इनमें से हमने ऐसी सिचुएशन कंसीडर नहीं की. मतलब मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, जैसे अगर ये फंक्शन है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको ए लूं, ए चूज करूं, और इसको बी चूज करूं, तो ये यहाँ स्ट्रेट लाइन हो गई.
और इसकी स्ट्रेट लाइन ये यहाँ नीचे आ गई, ऐसी ये वाली सिचुएशन नहीं है। सो ए यहाँ नहीं हो सकता, इट शुड बी समवेयर हियर, ठीक है, ये सिर्फ पॉजिटिव। तो एरिया हम उस वक्त ही फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो पॉजिटिव का मतलब है ये वाला, इसका ये है, ठीक है, ये सिचुएशन है यहाँ पर, ये येलो आपको इंडिकेट करेगा कि दिस इज सेम थिंग। ओके, सो वी विल कॉल दिस थिंग जो ऊपर वाली है, या जो सब फिगर्स हैं, इनको फंक्शंस कहेंगे, जिसको हमने पहले प्रेजेंटेशन के शुरू में मैंने कहा था कि हमको नाइस कहते हैं ना, NIC एक वर्ड हम जैसे उनको दिया था, तो हम उनको अभी फंक्शंस कह रहे हैं। रिमेंबर, नीचे आपके x है, ये भी आपकी परपेंडिकुलर लाइन होगी विद b, ये आपकी विद रेस्पेक्ट आई मीन a परपेंडिकुलर लाइन होगी, ऊपर वाला आपके पास सिर्फ फंक्शन होगा, जो चेंज होता जाएगा तो आपकी फिगर्स चेंज होती जाएंगी। आपने बिल्ट इन अभी उस पर किया है, मतलब जो प्रोसीजर बनाया है वो इस सेटअप पे बनाया है, इन इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जेन में जो आता है कि अब सारे फंक्शंस, ये जो सारी फिगर्स हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, उनका हम एरियाज फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस रेमानियन प्रोसीजर और रेमानियन प्रोटोकॉल, या उनको इन अदर वर्ड्स मैथमेटिक्स में ऐसे भी कहते हैं कि ऑल दीज फंक्शंस रेमान इंटीग्रेबल, वो है कि नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली नहीं है, मैंने शुरू में भी हमने कहा था कि कुछ के लिए होगा, आगे जाके और टेक्निक्स भी हैं, बट दैट आर नॉट इन यूर लेट्स कोर्स। और अगर नहीं है तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हाउ वी कैन आई मीन डिसाइड, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है डिसाइड फॉर कैलकुलस 1। आई जस्ट वांट टू शेयर आई मीन कपल ऑफ डिटेल्स के सब फंक्शंस के लिए नहीं है, और उनका क्राइटेरिया थ्योरम्स में या थ्योरेटिकली उसका गिवन है, बट इट्स बियॉन्ड आवर द क्लास, वी आर नॉट गोइंग टू रब इट मोर, डिस्कस इट इन डिटेल, सो नो, बट मतलब जस्ट आई मीन थोड़ा सा इतनी सी नॉलेज आपके पास हो गए बस, सबके लिए नहीं है, ठीक है। रीमान इंटीग्रेशन, सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं। ओके, द थर्ड क्वेश्चन कम्स इन माइंड इज the Riemann procedure or the Riemann integration enjoys the usual properties or the all properties of the area। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं एरिया की, जैसे आपके पास दो फिगर्स हैं, ठीक है, एक फिगर दूसरे का हिस्सा है, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये आपका है स्क्वायर, अब इसमें दूसरा आपके पास ये ट्राइंगल है। नाउ दिस इज पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन, सर्टेनली लेस देन एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अगर एक फंक्शन इसमें बिलोंग कर रहा है, उसका सब है, तो आंसर ऑफ f1 शुड बी लेस देन आंसर ऑफ f2, ठीक है। तो ये एरिया है बेसिकली, ए जो है ना, और अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर एक फिगर यूं है और वो यूं, एक दूसरी यूं है, इनका कॉम्प्लीमेंट 0 है, ये इन दोनों में कोई भी चीज सेम नहीं है, देन इन दोनों का जो यूनियन होगी, या जो इनकी एरिया की यूनियन होगी, आप पहले उनको एक साथ मिला लें, फिर एरिया फाइंड करें, या फिर अपनी अलग अलग एरिया फाइंड करके ऐड करें, तो ये भी ट्रू होगी या नहीं। तो मोस्टली देखा गया है कि ये जो रीमान प्रोसीजर है, ये अच्छी खासी प्रॉपर्टीज एरिया वाली, इस तरह मतलब जो मैथमेटिकल साइंस भी अलो करता है, उन वो प्रॉपर्टीज इंजॉय करता है, मतलब एडमिट करता है, फॉलो करता है जो इंटीग्रेशन है हमारा, ठीक है। और लास्ट स्लाइड में इस प्रेजेंटेशन की ये सारी प्रॉपर्टीज फॉर्मली मैंने लिस्ट की हुई हैं, ठीक है, और बुक्स में भी ये होती हैं, और किस नाम से होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से। तो ये हम उसको देखेंगे। तो पहले दो क्वेश्चंस के आंसर यही थे कि हमने इनको नाम दिया है, यहाँ पर फंक्शन का है, और इसमें क्वेश्चन का आंसर था कि नो, इट इज नॉट आई मीन valid this procedure of integration to find area for all functions, not for all, it is not for all functions, ठीक है। and this is the proof of the B, ठीक है। I would like to skip this for you because in later classes अगर आप math के courses और लेते हैं तो you might have an opportunity to learn about this, but not now, ठीक है। and this is the same, basically I will skip it for you
यहाँ तक ये भी स्किप है आपके लिए, बट सो एंड ऑफ दिस हिस्टोरिकल डिस्कोर्स है जो हमने इसकी डेवलपमेंट इंटीग्रेशन की है, ठीक है। सो कुछ और इसमें चीजें ऐड होंगी, और तो there is still a few T's to cross, namely a symbol for the answer provided by the Riemann program and few additional convenient properties. अब जो Riemann integration इस प्रोसीजर से आंसर आता है उसको हम लिखेंगे क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि we will write it in this notation integration. So we are dealing with a function. The symbol for the answer जो Riemann integration हमें आंसर देता है उसको हम ऐसे लिखते हैं. Now this is equal to, we write in some nice format. So now this is equal to summation of I is equal to 1 to n delta x f of x I. ठीक है, तो ये आपका इसके इक्वल उस वक्त होगा जब आप लिमिट पुट करेंगे n approaches to infinity. Alright, so this procedure जो हमने किया था, this is equal to this integration. Now इसको हम रीड ऐसे करेंगे, the integral from a to b, and essentially a is, I mean, the smaller than the b, right? ठीक है, मोस्टली ऐसे मतलब होता है, अगर ना हो तो भी इट्स ओके, but then it will be covered in the properties in recognize के क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कंबाइन बुक्स में भी आपको हैं। So if I can you see this full screen? Can you guys see this full screen? Yes, sir. Okay, so well, I thought के उसमें से माल थोड़ा सा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर में भी इजी हो। तो इनकी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे हैं कि फ्रॉम ए टू बी अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, देन लिमिट्स एक्सचेंज करते हैं तो यू हैव रिवर्स द साइन माइनस, ठीक है। और अगर ए टू ए इंटीग्रेट करेंगे द आंसर विल बी जीरो बिकॉज द एरिया विल बी जीरो, सो देयर इज नो एरिया कवर्ड बेसिकली। कांस्टेंट्स का इंटीग्रल हमेशा डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स होता है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द लिमिट। एंड कांस्टेंट मल्टीपल हो, you can take that constant out, so this is very obvious property, scaling or constant. Sum or difference integration process or finding area is distributive over sum and difference or subtraction. इन पर आप distribute कर सकते हैं। And additivity in terms of limit, so a to c same function plus c to b is basically equal to integrating from a to b. You can skip with c, or if you want to break this into 2 or even more, you can do this, ठीक है। And then I think this property is quite complex. I'm not sure if you are going to use this in calculus, but remember this 8-1. If function is greater than this one, जो हमने पहले भी की है, अगर आपका एरिया ज्यादा है, दूसरा उसमें कंटेन होता है, मतलब फंक्शन आपका शेप, तो उसका एरिया भी उससे ज्यादा होगा। अगर फंक्शन इज ग्रेटर देन दिस फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिटवीन a एंड b, देन इसका एरिया इससे ज्यादा होगा, ठीक है। ओके, और अगर f of x पॉजिटिव है हर वक्त, तो उसका ये भी एरिया भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं है तो। All right. So ये मतलब this was historical background of the integration, and in coming class, coming session or coming maybe presentation, if I get attention from you or response from you, then उसमें हम ट्रिक्स करेंगे इस इंटीग्रेशन को, जो कि डायरेक्टली इक्वल है इस रीमन एंड सम के। इसको सॉल्व करने की या इसको डील करने की ट्रिक्स या टेक्निक्स से हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल दीज प्रॉपर्टीज देयर इज स्टिल वन क्वेश्चन, ओके, सो इट्स अ रियली बिग क्वेश्चन। आई मीन आपने इस बैक स्लाइड में यहाँ पर नोट किया
कि हमने ओके दिस वन हमने ये वाला मतलब हिस्सा काउंट नहीं किया या डेवलप जब किया या हमने जैसे उसको, तो ये नेगेटिव वाला we were constrained or limited ourselves to positive function, ठीक है, क्योंकि एरिया फाइंड करें तो हम इसको नेगेटिव नीचे वाला ये कंसीडर नहीं किया। तो अगर नीचे आ जाए ऐसा जनरलाइज कर रहे हैं ना हम, तो अगर ये फंक्शन है and if we want to find the I mean now area under the curve is a vague concept, अगर ये आपको फंक्शन है, ठीक है, this is function, now if this is function then ये जो आपका shaded region है, now this is basically integration from a to b f of x। आप इसको area under the curve तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि this area is not under the curve, so this is area between the curve and the x axis, ठीक है। Is it clear? आपको याद होगा शुरू में we had a wild feedback from the class, तो ये एक चीज थी कि area under the curve, so generally it is not area under the curve, so it is area between the x axis and the curve। तो ये भी तो आपका फंक्शन हो सकता है, या इस तरह के भी फंक्शंस हो सकते हैं which will have negative values। तो उस सिचुएशन में ये है तो एरिया, बट तो इसको हमने पॉसिबिलिटी तो इसकी देखी नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन इसके इक्वल है, तो हाउ कैसे। सो इसका एक तरीका देखने का ये है कि आप इसको ऐसे देखें, ठीक है, पहले ये वाला फंक्शन था आपके पास, लुक दिस वन, ठीक है, अब इसको आप जस्ट इसकी सिमेट्री लेके आप उसको ऊपर देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम ए टू सी, तो ये आप सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड ये जो एरिया है इस एरिया से सब्ट्रैक्ट करते हैं बिकॉज इट इज नेगेटिव, एंड देन सो फ्रॉम ए टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, एरिया से मतलब एफ माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका बेसिकली ओके सो इट्स अ नेगेटिव एफ लाइक दिस, तो ए टू बी आपका एफ पॉजिटिव एंड देन नो सॉरी ए टू सी आपका नेगेटिव हो जाएगा एंड देन सी टू बी आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू try to match or try to map this with a Riemannian integration, Riemannian sum, ठीक। Any question from this part? ऊपर से डिस्प्ले कर सकता हूँ? जी बच्चे, this one, this one, yes sir। फिर तो आपने बोला बेसिकली जो हमने इसको सिमेट्रिकल बनाया लाइक अबव द एक्स एक्सिस, उसको हमें अगर टोटल इंटीग्रेशन फाइंड करनी तो हमें उसको माइनस करना होगा। जी हाँ, just to map with the Riemannian thing। ऑलराइट, जब से कंफर्म करना था, थैंक यू। अभी ये थोड़ा बहुत सारा थ्योरेटिकल था, अभी इसके लिए इसको इससे रिलेवेंट आसान चीजें आपके पास आ रही हैं, ठीक है। I'm very keen while teaching, I really like to share the ideas IO जो मेरे पास होते हैं उनके लिए stop sharing, and let me share this on LMS।
Hmm.